Instagram minus reels, yeah, including reels. माइनस रील्स. I Minus never reels. saw reels. Minus I reels. रील्स तो मैं वैसे भी नहीं देखूं. वो Oh, endless vicious yeah, circle है. exactly. Hi guys, welcome to Success Boat. I am glad to present to you our toppers of CLAT 2021 and आज ये Q&A session है basically जिसमें the toppers from CLAT 2021 will be answering the queries of all those people who will be taking CLAT 2022 and this is just a general interactive session जिससे जो भी आपके queries and doubts वगैरह है सारा इस session में solve हो जाए. Before taking those queries, I would like to say that ये जो जितने भी students बैठे हैं यहाँ पे I can proudly say that Success Boat has produced results in all of the top 12 colleges of the country. And ऐसा एक भी कॉलेज नहीं बचा टॉप 12 में जहाँ पे सक्सेस बोर्ड का कोई गया नहीं. Okay, so a hearty congratulations to everyone for your splendid results. सबसे पहले first question is, what were your GK strategies from day one? How to make current affairs के अच्छे से notes? Like yeah, I used to go through the newspaper reading, पहले reading कर लेती थी, and then I used to go through YouTube video के कोई analysis अगर हुआ, if I miss out reading newspaper तो वो analysis I used to get just कि okay this is what is happening in the day, but at the end of the week I used to make sure कि I make the notes. I made notes from different sources, being a Success Board के compendiums. Other than that, Drishti and YouTube maybe I took help from Study IQ and other sources. Like I used to type a topic name. For example, अगर ये India and Bangladesh relation ले लो, तो I used to simply go, मतलब after taking all the notes down from Success Board के compendium Drishti IS, then I used to go to YouTube and type out the topic name. फिर उसमें जितने भी relevant videos आते थे सामने के 4-5, I used to see it in 2 times speed. तो उससे भी like जो भी additional information होते थे वो वहाँ पे cover हो जाते थे, and in those additional things only the static part used to come. I didn't do anything अलग से कि ये static book पढ़ लो या stuff, because I was also preparing for 1.5 years, but I did not take so much interest in GK का static portion because we were said कि static नहीं करना है, current से related. So when although it was a scam, like very big scam, but that is what it was said, so we followed it, and then we took the things seriously, like really seriously हमने current करके गए, and then paper में कुछ और था, so let's not discuss about that. So in that thing only हमने जितना static cover किया था, like I did from the videos only, I did not refer to any book कि यहाँ से static कर लो and all. Yeah, that's it. And make sure that you make the notes जो भी आप हफ्ते में बनाते हो वो हर 2 weeks के बाद एक बार revise कर लो, because it's not possible to remember everything, and after a month again revise it. Like आपका already 2 बार ऐसे revision हो जा रहा है, and then when you sit exam के last day पे, so you don't have that much burden कि तुम्हें करते जाना है notes. You see a pile of notes, like I had a huge pile. Like मेरे को तो डर लगा था because I missed out that weekly things, although I did it monthly wise, but missing out weekly was one wrong thing I did. So I'd suggest कि if not in a day or two you don't get time, please do it at least once a week. Yeah, that was my strategy. Okay, किसी को इसमें ऐड करना है? यस भैया, मैंने क्या किया था डे 1 से, मतलब मैं द हिंदू पढ़ता था, तो एवरीडे आई रीड द हिंदू, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू बट ऑन द डेली बेसिस you will see a pattern of the, you will see the topics will be recurring on every day. तो मैं क्या करता था, मैं उस टॉपिक्स को एक नोटबुक में नोट कर लेता था. तो वो होता क्या था कि एवरीडे पढ़ने से वो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में रहते थे ट्यूटोरियल्स पढ़ने से. और जब एग्जाम्स के 4-5 मंथ्स पहले मैंने उन सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाने शुरू किए थे. तो उनसे हुआ कि ज्यादा पाइलअप तो नहीं हुआ जैसे नादिया ने कहा, तो मेरे उतने पाइलअप्स नहीं हुए, बट जब टॉपिक लिस्ट निकली, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट कोचिंग सेंटर्स की, तो उसमें सारे मेरे टॉपिक्स कवर हो चुके थे, तो और सारे इंपॉर्टेंट थे. तो बीच बीच में मैं उससे उन्हें रिवाइज भी कर लेता था, तो वो काफी सही हो गया. और मेरा करंट सब उससे जीके से, मतलब इस बार जीके से आज सब नहीं बोलूंगा, बट यस मेजरली उससे आ गया था, मेरा काफी कवर हो गया था. ऑल्सो एक इशू ये भी रहता है कि जो भी हम पढ़ते जाते हैं वी टेंड टू फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स. तो इस पे
किसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कोई अगर किसी को एक इसका कुछ अच्छा सा तोड़ मिला हो कि कैसे हम इसको याद करते चलें कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम ना हो हमारे साथ। भैया एक चीज जो आप बोल रहे हो वो सही बात है, बट होता क्या है ना कि क्लैट में अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो जब वो क्वेश्चन आता है ना तो माइंड में पॉपअप करता है और वो हो जाता है ठीक। मेरे साथ हुआ एग्जाम में। Yeah, Yeah, what you can do is that some 2 or 3 people can form study groups, and you can have like daily or weekly sessions where you discuss certain important topics that have been happening, and you can ask questions from one another. In that way, it becomes like very easy for you to remember. Because if somebody else asks you a question and you don't know the answer, or you know the answer and you speak it, so it like just stays in your mind when you ask questions to your friends. Okay, so next question, I guess others can answer it quite beautifully. Okay, what is the difference between your prep for CLAT and your prep for ELIT? फर्स्टली आई थिंक कि फंडामेंटल डिफरेंस तो नहीं है। आई थिंक कि जो बेस क्लैट एंड एलिट का है, आई थिंक दोनों का सेम होना चाहिए फंडामेंटल बेस। लाइक इंग्लिश में अगर देखें, द ओनली थिंग एलिट आज डिफरेंट इज ग्रामर, बाकी वोकैब एंड आरसी इज लाइक पूरा भरा है क्लैट में। आई थिंक कि इंग्लिश में ग्रामर है, एंड देन लीगल में कंसेप्ट्स आर द सेम। अगेन कंसेप्ट दोनों की में सेम ही लगेंगे। आई थिंक क्लैट ने इस बार बहुत सारा स्टैटिक लीगल पूछा है, तो एंड सेम लीगल सेम आइलेट पूछता है, बट वो प्रिंसिपल्स में पूछता है। आई थिंक कि इंग्लिश एंड लीगल में आई डोंट थिंक कि कुछ अलग प्रिपरेशन है इंग्लिश में ग्रामर को छोड़ के। मैथ्स अगेन कॉन्सेप्ट्स करने ही पड़ते हैं, तो आज मैंने कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब कॉन्सेप्ट सेम थे दोनों के। देन आई वुड से लॉजिक के लिए पजल्स आइलेट में भरी रहती हैं, एंड सीआर पजल सीआर एंड स्टेटमेंट बेस वाले जो इस साल तो स्टेटमेंट बेस बहुत आया था। तो आई थिंक कि वहां से एनालिटिकल रीजनिंग एंड थोड़ा सीआर जो स्टेटमेंट वाइज पूछता है आइलेट, वो ही डिफरेंट है। बाकी तो सीआर आई थिंक क्लैट की इतनी सीआर की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एलिट का सीआर आसानी से बन जाएगा आई थिंक। एंड जीके आई थिंक क्लैट में वी आर लाइक इतना कम्प्रिहेंसिव हो रहा है जीके कि मुझे तो एलिट के सारे क्वेश्चंस बन गए थे जीके में। मतलब क्लैट में इतना सारा रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो। एंड वन मोर थिंग, जो रिवीजन जो रहता है कि भूल जाते हैं। आई थिंक कि आज अब जो न्यू पैटर्न हो गया है, मतलब क्वेश्चंस को इस बार हटा दें, पर न्यू पैटर्न के हिसाब से आई थिंक कि रोज रोज जो इवेंट्स होते हैं उनकी एक टाइमलाइन बन जाती है। एंड जब रोज अपन एडिटोरियल्स पढ़ते हैं एंड वो पूरा एक टाइमलाइन बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, जो प्रखर भैया ने बोला था। तो आई थिंक हो जाना कंसेप्ट्स एंड फाउंडेशन बेस दोनों का सेम है आई थिंक। एंड मॉक्स प्रीटी वेल। आई थिंक एलिट मैनेजमेंट का मोर ऑफ मैनेजमेंट है पेपर। इस बार तो इजी था, बट लास्ट टाइम और प्रीवियस से पेपर्स 1.5 आवर्स में होते नहीं थे खत्म। आई थिंक मोर ऑफ कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, दैट इज मोर ऑफ इम्पोर्टेंट। Now the next question is, what are some habits which a CLAT aspirant shall adopt? The most important habit that as a CLAT aspirant you need is reading. Literally every question will involve reading. Okay, even maths this time, there were no graphs. You have to read the question. So read newspapers, read books, solve as many mocks as you can. Just read as much as you can and try giving timed mocks. That is the most important thing. You need to read and you need to increase your speed of reading. So if there would be any single most important thing that I could suggest, it is this. I'd like to add one thing here. Like as an aspirant, सबसे पहले learn to cut off negativity. एक साल के लिए भूल जाओ ये something called friends with negative habits. Like trust me, your friends can be your biggest enemy during your preparation. बोलेंगे यार आज पार्टी करने चल, आज there is this one's birthday, tomorrow I'm going to this place, please come with me, tomorrow is a movie night, tomorrow is a night stay. Guys, this is not the time. यार 5 साल होंगे तुम्हारे पास, कर लेना जितने मजे, बट 1 साल के लिए प्लीज संन्यास ले लेना। Like just think कि this 1 year the efforts you put, they are not going to go on waste. If you sacrifice 2 friends in this preparation journey, you are definitely going to land having a more bulky friends group. Maybe आपने वो 2 खोया था, तो यहाँ पे college में you might get 10 more better people who would be of the same understanding. In fact,
after, like, I'd say my own thing, I left few friends and then now I think that was the best decision. Like, negativity से दूर रहो यार. It's like if you need deactivate your social media, नहीं फर्क पड़ता. अगर आप मर भी जाओगे ना in this 1 year, they won't ask you. It's like that. Like, during my preparation, I just stopped texting people and I realized that मैं फालतू की ऐसे पौधों में पानी दिए जा रही थी. They were already dead. Until you don't text, they won't text you back. And right now when I have a college, they are the same people who came to congratulate me. So even if you lose your friendships right now, don't cry over them. Just get a rank, just get into a good college, and trust me, they'll be the same person to come. They'll be like, I'm sorry I did this, I'm sorry I did that. Just keep away from all these negativities. Okay, so planning plays a very important role in your preparation, because at the beginning of my preparation, I used to just go with the flow. But when I got to know the importance of planning your day beforehand, trust me, it made a really big difference. You just make a to-do list, what to do today, or at the end of the day, you just write down what you did today, so that you'll get to know, did you waste your time or did you do stuff that is really productive. And this is a very important thing that you have to start right now, that you make a list of things that you are going to do today. And this is my advice. फॉर क्लैट एटीट्यूड के लिए तो मतलब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, रीडिंग तो देवान ने बोला, लेकिन उसमें ऐड ऑन करने के लिए कि मतलब एक ही चीज रीड मत करते रहो. मतलब साल भर से स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ लिया तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला. लाइक डाइवर्सिफाई और रीडिंग क्या बोलते, तो मतलब किसी दिन बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, किसी दिन गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ लिया, स्पेस के बारे में पढ़ लिया. तो ऐसे एक्सप्लोर करते जाओ और जॉनरस करते जाओ. और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, क्योंकि क्लैट आधा टाइम उसी से पूछ लेता. तो इंडियन एक्सप्रेस आपका बाइबल काइंड ऑफ होना चाहिए. एंड मेक टारगेट्स, लाइक टारगेट्स एज इन सेक्शनल टेस्ट दिन में इतने करना है. शुरुआत 3-4 करो, दिन के 3-4 सेक्शनल टेस्ट, उसको लेते जाओ 10-15 तक लेते जाओ, और साल भर तक एंड तक हो जाएगा. इतना कर लिया तो आ जाना चाहिए. भैया एक चीज, सक्सेस बोर्ड के जीके ग्रुप से मुझे एक फायदा हुआ था. होता क्या था ना, उसमें डिस्कशन होते थे, बच्चे उसमें बोलते थे कुछ नाम, कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ भी, और मैं लगता था मैं इतना पढ़ के गया हूँ और ये कौन सा टॉपिक, तो मैं उसको नोट कर लेता था. तो वहां से बहुत ज्यादा मेरा मतलब वो डाइवर्सिफाई हो गया सोर्सेस, और काफी ज्यादा सही होता है वो डिस्कशन ग्रुप से. मतलब अलग चीज पता चल जाता है. लास्ट में जीके के जो डिस्कशन सेशंस होते थे रात वाले, बेसिकली And those discussion used to go on for hours. ऐसा नहीं कि आपका आधा घंटा या 1 घंटा में बस किसी एक ने बोला कि टॉपिक ये कर लो and all. It was not like that. It was like, if not with तो 50 people used to be there, and out of that 50 at least 20 used to give input for one topic. Like एक टॉपिक में आपको 20 different inputs वहीं से मिल जा रहे हैं, and then you again research, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता था कि अच्छा ये भी exist करता है इस टॉपिक से. And then you research and then you have a very good notes. Like वहाँ से ना you get एक topic के 5 different kind of varied notes. So that again helps. Also इस बार I saw a pattern कि all those of you जिनके 100 या फिर 90 ऐसे स्कोर आए थे, you had a great score in quant. तो उस पे कैसे पूरा रहता है? मतलब when I see the majority, I see के almost everyone who scored below 80 or something, उन्होंने मैथ्स छोड़ दी थी. तो how did you guys work upon your entire maths and quant वाला पूरा DI का सारा? तो देखो, if you compare all 5 sections of the paper, quant सबसे ज्यादा आसान आएगा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है. और अगर आपका बेस क्लियर है क्वांट में, तो टाइम भी सबसे ज्यादा कम उसमें ही लगता है. मतलब 15 मार्क्स का तो आएगा क्वांट, ये मान के चलो आप हर साल. 15 में से भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 10 तो आप बहुत प्यार से लेके आओगे क्वांट में. तो वो ये, और क्वांट बहुत आसान आएगा. अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे उसकी DIs की, तो आपका आराम से आ सकते हैं मार्क्स 10. ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल की आप RS अग्रवाल कर रहे हो, क्योंकि रेकमेंड बहुत ज्यादा करेंगे, स्पेशली कोचिंग वाले, कि आप RS अग्रवाल से करो या वहां से करो. ऐसी कोई जरूरत नहीं है. आपको बहुत टेलीग्राम पे 1-2 बुक्स हैं, IP मैट की स्पेशली रेकमेंड करूंगा. मैंने भी क्योंकि उनसे ही प्रिपेयर करा था. जो DI आएंगे वहां उससे ही रिलेटेड होते हैं. और अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे क्वांट की, तो आराम से हो जाएगा क्वांट.
और बहुत सारे लोग यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं क्लैट देने, तो फिर उन्होंने जो 10th लेवल तक की भी मैथ्स पढ़ी है वो भी बहुत एनफ है। उसमें भी एडवांस स्टफ नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, और उसके तरह जो भी एडवांस स्टफ है वो नहीं पढ़ना है। बेसिक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, ये सब चीज़ें पढ़नी है, जो कि 8th तक की तुम एनसीईआरटी भी ले लोगे तो उसमें अगर जो सॉल्व करना है उससे बेसिक स्टफ क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत बाकी डीआई के लिए अलग अलग बुक्स होती है। और मॉक्स भी सॉल्व करते रहोगे तो उससे भी हो जाता है। जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मैंने मॉक सॉल्व किए थे, जैसे एसबी के मॉक सॉल्व किए थे, और जो एसबी ने हमें को प्रोवाइड किया था वो डीआई सेट्स वगैरह, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मतलब ये है कि प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहो डेली बेसिस पे। जैसे बार ग्राफ हो गया, ये डी मतलब और हो गया, जैसे आपके बेसिक 10th वाले टॉपिक्स हो गए, और बस यही प्रैक्टिस करते रहो। आधा एक घंटा अपना टू डू लिस्ट में जोड़ लो कि आधा घंटा मैं क्वांट्स करूँगा, आधा घंटा वो करूँगा, तो इससे मतलब काफ़ी अच्छे, बहुत आसान है। मतलब होता है कि केवल क्वेश्चन देख के आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, या समझ नहीं आता क्या करना होता, लेकिन या बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन लग रही है, पर ऑप्शन में एक बार ध्यान दोगे ना तो अपना आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्लैट 2020 का क्वेश्चन, किसी नंबर का 23% निकालना था। अब ऑप्शन में एक जगह 18,000 है, एक जगह 20,000 है, एक जगह 23,000 है, एक जगह कोई और नंबर है। तो अभी 23,000 किसी भी नंबर का आप निकालोगे तो उसमें 23 फैक्टर तो होगा ना, 23% किसी भी नंबर का निकलेगा, उसमें 23 फैक्टर होगा उसका। तो ऑप्शन में केवल एक ही नंबर है जिसमें 23 एक फैक्टर है, तो आंसर सॉल्व हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को यूज करने। तो ऑप्शंस सबसे ज़्यादा मैथ्स में यूज होता है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। There will be like when we talk about coaching mocks, not SB का, अलग कोचिंग का, जब आपको दिखे कि कैलकुलेशन गंदे होते जा रहे हैं, like you have to keep on dividing and वो पॉइंट्स में चले जा रहे हैं, just know कि वो एक कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। आई एम बीइंग सीरियस अबाउट दिस। वो बैंक पीओ मेन से क्वेश्चन लिया हुआ रहता है। डोंट गेट अफ्रेड कि तुम्हारी मैथ्स खराब है, ठीक है, जस्ट सिंपली लीव दैट क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू गाइज, बिकॉज आपको कोचिंग का क्या होता है कि दे हैव टू कीप गिविंग यू मॉक्स, वीक में 3 मॉक्स, यार क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे? सो बेसिकली in this place I have seen कि सक्सेस बोर्ड के क्वालिटी में they never compromise, that's the best part, क्योंकि आपको उनके कैलकुलेशन एटलीस्ट बैंक पीओ मेंस के तो नहीं लगेंगे। I mean वहाँ पे क्या होता है कि बैंक पीओ मेंस का ठीक है आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन कैलकुलेशन you will be like in math section basically one should not give more than 15 minutes, but जब आप कोचिंग करने जाते हो you even give 20 minutes and still आपके पास like एक सेट बचा होता है, that is when it's a trigger warning, this is not my math section, ये बैंक पीओ का math section है। and in that case success board के math section में it would hardly take 12 minutes, like 12 to 15 minutes max में। it's like उनके ना वो प्यारे प्यारे कैलकुलेशंस होते हैं। आई एक्चुअली से कि प्यारे वाले कैलकुलेशन, गंदे वाले कैलकुलेशन, आई नो माई टर्म्स आर वियर्ड बट दैट्स द रियलिटी। जब आपको गंदे कैलकुलेशंस देखे, जस्ट स्टे योर ब्रेन, डोंट पैनिक हियर, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, दिस इज नॉट वर्थ इट, जस्ट स्किप इट। हाँ, चाहे तुम्हें उस मॉक में थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग दैट कैलकुलेशन, बट यू नीड टू इवन लर्न हाउ टू स्किप क्वेश्चन। जब अभी भैया ने कहा कि पीपल हु स्कोर्ड लेस देन 80 दे कुडंट कंप्लीट द मैथ सेक्शन, जबकि मैथ सेक्शन वाज प्रीटी इजी व्हेन वी कंपेयर दिस ईयर्स मैथ्स का सेक्शन व्हेन वी अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पैटर्न। मतलब वहाँ पे तो फिर भी आपको ज़रूरत था कि यू हैव टू नो मेंसुरेशन। यहाँ पे मेंसुरेशन तक नहीं था। मेंसुरेशन इज अ चैप्टर विच बेसिकली पीपल गेट स्कैर्ड जस्ट बिकॉज उन्हें फॉर्मूले नहीं पता होता है। इन दैट सेक्शन, इन दैट केस आई से कि जब आपको पता है कि नहीं हो रहा है, जस्ट लीव इट। दैट्स द रीजन व्हाइल यू लर्न टू रीड एंड स्टफ, इवन लर्न हाउ टू negate things out. Negating should be your very prime thing which you will do in the next 1 month while you give mocks. Yeah, this was also a deciding factor in 2018. 2018 में when I had this maths का section, वहाँ पे एक question था, उसमें क्यूब रूट निकाल दो। तो वहाँ पे एक कोई वो काफी टफ सा क्यूब वाला क्वेश्चन था। वो मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यू नीड टू सी 2 सेकंड के अंदर तुमको पता लग जाता है कि ये करने वाला क्वेश्चन नहीं है, छोड़ने वाला क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर्स क्लैट, वो 2014 वाला जो क्वेश्चन था, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन के उसको वो आंसर आता हो। जिसका तुक्का लग गया, वो अलग बात है, लेकिन यू कैन नॉट रैंडमली आस्क यार इस साल में ये वाला अवार्ड किसको कब मिला। तो दिस इज सेम एज आस्किंग कि 2004 में ये वाला मैच इंडिया के साथ क्या हुआ था, किसने जीता था।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको 2-4 वर्ड्स पढ़ के छोड़ने वाले होते हैं, तो ये भी आपको एक करते करते बेसिकली डेवलप होता है। तो हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू मैनेज पीसीएम विद क्लैट प्रेप, एनीवन पीसीएम साइंस बैकग्राउंड। मेरा भी। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी तुम लोग के पास बोर्ड्स और क्लैट के लिए कुछ महीने बचे हैं, अभी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लैट का पढ़ाई शुरू कर दो। ये अभी इसको प्रायोरिटी बनाओ, जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते जाएंगे फिर फिजिक्स आएगा, फिजिक्स को मैनेज करना सीखो, बट बोर्ड्स को ज्यादा टाइम मत दो। क्लैट के लिए आप अगर अभी से 3-4-5 घंटा दिन में करोगे और उसके बाद 1-2 घंटा भी कर लिया पीसीएम तो काफी है उतना, क्योंकि पीसीएम हार्डवर्क लगता है जरूर है, लेकिन उतना भी हार्डवर्क नहीं लगता कि आप क्लैट के लिए कॉम्प्रोमाइज करने जाओगे, क्योंकि 45% में भी आपको एनएलयू मिल जाएगा अगर आपका रैंक आया, लेकिन 98% लाके आपका यार कुछ 10,000 11,000 आ रहा है तो फिर क्या ही कर लोगे आप। तो वो क्लैट को प्रायोरिटी बनाओ, पीसीएम धीरे धीरे कर लेना, बट क्लैट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, जो लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि पीसीएम का मैथ्स कर लिया तो क्लैट का मैथ्स हो जाएगा, इसको मन से हटा दो। उधर वो लोग ट्रिग्नोमेट्री पूछते हैं, इधर तुम लोग को ग्राफ पूछते हैं, इधर टाइम मैनेजमेंट का खेल है, तो उन दोनों का प्रिपरेशन अलग से करना। ये गलती मैंने की थी, मुझे 2 महीने पहले ये समझा, तो तुम लोग अभी से शुरू कर देना बस। भैया एक चीज आपने कहा था जीपी स्पेशल में कि 12th के मार्क्स का क्या करोगे जब क्लैट का रैंक नहीं आएगी या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उस समय बहुत कंफ्यूजन था, बट अभी सही में समझ में आ रहा है कि वो कुछ नहीं था। अच्छा किया मैंने उसको साइड रखा और क्लैट पे थोड़ा फोकस किया। इस बार तो 12 के मार्क्स भी प्रसाद जैसे बट गए, वो भी आ गए, सबको दोनों चीजें मिल गई। एग्जैक्टली नहीं, बट जिन लोगों का 11 अच्छा था उनको थोड़ा बुरा लग रहा है, लाइक दे डिड हार्ड वर्क, उनको जितना मिला है, जो नहीं पढ़ रहे उनको भी उतना ही ऑलमोस्ट मिला था, तो हाँ थोड़ा सा बुरा लगा था उसमें भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पुनीत, ठीक है। सो पुनीत एंड हर्षिता, यू बोथ कैन आंसर, ठीक है। व्हाट वर, एक वो जो बाइबल टाइप बुक्स होती हैं कि ये तो करके जानी है, इस तरीके की कौन सी बुक्स थी? इंग्लिश में ब्रेंडन मार्टिन सब लोग बहुत यूज़ करते हैं, वो बेसिकली ग्रामर के लिए है, वो हो सकता है क्लाइंट में ज़्यादा काम ना है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी इंग्लिश नहीं है और अगर लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और एलेट में तो बहुत मदद करेगी। और आरसीज के लिए अलग अलग मिल सकती है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि सेक्शनल टेस्ट एसबीके या किसी कोचिंग से भी अलाइन ज्वाइंट हो तो फिर, लेकिन सेक्शनल टेस्ट बहुत मदद करते हैं। लेकिन एक बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि जीमैट की वेबसाइट होती है, उसमें कुछ लेवल्स करके आपको आरसीज मिल जाएंगे, जैसे 600, 700, 700 to 800 इस तरह के लेवल्स होते हैं, जो कि आप कुछ अपना बेसिक लेवल फाइंड आउट करके कि मुझे कितना आता है, वहाँ पे से स्टार्ट करके अपने लेवल बढ़ा सकते हैं। And coming to me, what I did for English is that I read this word power made easy, and it helped me do my vocabulary and improve my, like new words. You can learn so many new words, and the book is so interactive. Like, you have worksheets in it, so it will help. Or else you can also choose this 30 days to a more powerful vocabulary. And except this, for maths, you can choose this 18 days by S10, if I'm not wrong. Coming to books, I did only these books. And sectional tests, obviously, no one can overemphasize on it. Yeah. Okay, so there is one पूरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, दैट इज कि रीडिंग स्पीड हमारी बहुत पैथेटिक है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? See, सबकी बिगिनिंग में तो खराब रहेगी। You're not expected to read extremely fast when you start. आपने प्रैक्टिस करनी है, and as you keep practicing, as you keep giving mocks, you'll get used to words. And as Vedant had said, diversify what you're reading. If you read different topics, you're reading philosophy, you're reading business, you will know some terms, you will know what this sentence is trying to say, and automatically you will not have to read everything. You'll be able to skim over the whole passage, okay, and it will take you less time. You will get the essence of what the author is trying to say. So what I did for RC and CR and all the reading speed का जो भी मतलब क्लैट में लग रहा था, I used a book of Norman Lewis, उसका नाम था How to Read Better and Faster. ये मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, उसको कंप्लीट कर लिया था,
एंड वन परसेप्शन आई वांट टू क्लियर इज दैट सब बोलते रहते हैं कि न्यूज़पेपर्स तुम्हारा सब काम कर देते हैं, जीके कर देते हैं, रीडिंग स्पीड कर देते हैं, लीगल अवेयरनेस कर देते हैं, वो करेंगे, लेकिन यू कांट रिलाई ऑन देम फॉर योर रीडिंग स्पीड, क्योंकि तुमको उसमें से जीके का ये भी निकालना है, मतलब you need to extract the data from it also, so you can't really read fast. So I made that mistake कि I thought कि न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा हूँ, 5 मिनट में एडिटोरियल कर लिया, ये कर लिया, हो जाएगा, रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा. You have to go on websites such as Aeon बोल के है, then Medium. एक और काफी बढ़िया क्वेश्चन. How to prevent zoning out while reading RCs and maintain your focus? ये सभी के साथ हुआ वो. Zoning out, that's very obvious. Like even air rank 1 might have zoned out a lot. मेरे साथ बस reading में नहीं, it's like while I was giving mock, after 40 minutes I used to become super impatient. I remember this query from your side. Exactly. It's like not just impatient and zoning out, मतलब ऐसा होता था कि I used to go in a complete different world, एकदम imaginary सा world. So what I did was like last के 3-4 months में, उस time तो it was like कि there were super ups and downs. So उस time what I did was कि I used to say, see Nadia, ये 2 घंटे if you are doing this mock properly, if you are putting full attention to it, I promise you I'm going to treat you something. See, your brain is very easy to be fooled. That is what Prakhar Bhaiya as well as Govind Bhaiya says. Like either you say something that ये कर दूंगा तो तुम वो ले लेना and all. उस type का I did that. Like I'm a person who runs completely on incentives. Like my brain understands the give and take policy. So every time I gave a mock, either I treated myself of something which I like to eat, or I used to go out. These were the 2 things I like doing. You can do is that कि say your brain कि ये don't never say कि तुम्हें 2 घंटा focus करना है. Always say your brain कि यार 10 मिनट focus करना है. Do this while you are reading. Don't try this in mock starting में do this while you are reading. When you say कि 10 मिनट में एक chapter खत्म करना है या 10 pages खत्म करना है, you know it well that 10 मिनट में वो 10 pages तो खत्म नहीं होने वाला. So, but your brain knows कि 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, and your brain keeps on reading it until it finishes it. And one more thing you can do, which I did, was I used to keep chocolates between the pages. I know this sounds super childish, but yeah, those were my rewards of brownie points which I gave myself. Like after this, I even followed in my 12th because I was from humanities background, so I had to read there also. So you knew that कि इतना पढ़ने के बाद तुम्हें खाना मिलेगा, या you would go out to do something. So in that case, your brain will be like super focused for those saying 1 hour but doing 2 hours उस type का. So other than studying tips, which already you know everything, sleep का बहुत important factor रहता है यहाँ पे. मतलब आपका brain एकदम उसको जब rest मिल जाएगा brain को, तो वो एकदम अपने potential पे काम करेगा. स्लीप हो गया, जैसे एक्सरसाइज आप करते हो, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी चीज़ है. तो मतलब अपने बॉडी और माइंड को प्रॉपर रेस्ट दोगे तो मतलब प्रोसेस तो स्लो है पर धीरे धीरे आपका डेवलप होएगा. आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है. ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है कि मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा. इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है. Next is there are some phases when we tend to get stuck between 60, 70, 80 ऐसे वाले scores पे, and हम कितनी भी मेहनत कर लें हमको कभी कभी रिजल्ट दिख नहीं पाता. Okay, so इसमें what can be the strategy? मेरा ऐसा बीच में हुआ था कि मतलब 60 के आगे स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज 10 दिन मॉक लिखना बंद कर दो. लाइक सोचो ही मत मॉक के बारे में. लाइक एक खुद को रीसेट करो और उसके बाद फिर से शुरू करो. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लाइन में एक बार 60 के ऊपर ही नहीं मिल रहा था स्कोर. बहुत रोना धोना कर लिया था, नहीं हो रहा था. तो उसके बाद मैं 10 दिन मॉक्स लिखना छोड़ दिया, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट और एडिटोरियल्स वो सब पढ़ा और उसके बाद मॉक्स लिखा. तभी भी नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ वो. तो जब भी ऐसे आपको लगता है कि आप किधर अटक गए हो, एक स्टेप पीछे लो, सोचो आप कितना प्रोग्रेस किया हो और उसके बाद फिर से शुरू करो. ऐसा नहीं कि आप उधर ही हो और उधर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर आपका भी मोटिवेशन गिरने लग जाता है, और अगर मोटिवेशन गिर गया आपका तो फिर तो बात ही खत्म है. तो वो मत होने देना कभी.
10 दिन लिखना बंद कर दो, एग्जाम में 10 दिन बचे हो तो। I'd say तो वो yes. थोड़ा I बैड लक हो गया। नहीं I'd say yes. Like I remember a mock नहीं मतलब exam के exactly 15 days ahead I gave a mock and I scored 52.75. I blanked out like anything. I was panicking to next second. I was like, what the hell are you doing? Exam ko it was just 13 days left. I said कि fine. अब 14 दिन में 5 marks से ज़्यादा तुम नहीं दोगी. And actually I gave 3 marks. हाँ उसमें भी scores it didn't go like it crossed 100. But उसके बाद भी I was doubting myself. I still remember calling प्रखर भैया and saying कि भैया मुझे स्कोर तो आ गया 105 but I'm doubting what to do. So in that case it's like guys don't panic out. Other than this, one thing I was about to add was that कि someone had asked about the reading speed. Before going to the reading speed, first try to do the comprehension part. मतलब कभी कभी जब मैंने स्टार्ट किया था उससे my reading speed was really good but my comprehension speed wasn't good. मुझे 2 बार पैसेज पढ़ना पड़ रहा था. So guys first work on your comprehension thing, then फिर उसके बाद जाना कि रीडिंग स्पीड में. जब तक आपको चीज़ें ही नहीं समझ में आएगा तो आप अगर उसको 10 बार भी पढ़ लोगे ना इट्स जस्ट योर वेस्ट ऑफ टाइम. फिर आप कहोगे कि मेरा क्वेश्चन तो 90 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं जा रहा, जाएगा कैसे जब आपका कॉम्प्रिहेंशन ही सही नहीं है. जब आप अटेम्प्ट ही कम कर रहे हो तो फिर हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि आपका स्कोर 70 या 60 के ऊपर जाएगा. To get a score above 70 or 75, you have to at least keep your attempt 120 plus. क्योंकि अगर आपका माइनस भी जाएगा तो 50 जाएगा ना. ऐसा तो अभी कोई होगा नहीं. I mean, okay, this is the starting, but majority में it doesn't usually go कि आपका 50 गलत हो जाए, 50 से ज़्यादा I mean. So yeah, work on the comprehension अभी for 1 or 2 months before jumping in the speed. Because once your comprehension is fine, तुम्हारी speed में automatically it changes. Next question is कि how to maintain the consistency. मतलब एक बार अच्छा स्कोर आ गया फिर अगले मॉक में वापस डिप हो गया, then उसको अगर consistent रखना हो and improve करना हो उसको, तो how to do that? The most important thing is to do the analysis of your mocks. Analysis is more important than attempting the mock. And if you don't analyze the mock, then it's just a waste of your time. Analyze the mock, see where you have got your answers wrong and what was the reason that your answer was wrong. See in which section you are lagging behind, which section is your weakness, which sections are your strengths, and then plan accordingly. If you are like getting a low score in a particular section, then give more time to that section. There is nothing wrong in getting a bad score if you are analyzing it well, that bad mock. If you are understanding that where you have gone wrong, what were your mistakes, then it is completely fine. But just remember one thing, that always analyze your mock. That is the most important thing. I just want to add one thing more. एक चीज आपको करना है वो है कि एनालाइज करते वक्त मॉक को आपको कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना है कि इस चीज़ में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया, क्योंकि जो कि बेसिकली बहुत ही सिंपल था. वो आप एक चीज़ कर सकते हो. दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि यू हैव टू मेक कॉलम्स. एक कॉलम हो सकता है कि इट वाज जो कि आपको बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना था. दूसरा चीज़ हो सकता है कि बहुत सिली क्वेश्चन था जो कि हो ही सकता था, और एक जो कि बहुत डिफिकल्ट था और उसको बिल्कुल भी मतलब इतना अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए था. तो एक चीज़ करो कि यू जस्ट नोट डाउन दोस क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 और 3, 5, और वो थोड़ा थोड़ा सब्सिक्वेंट मॉक्स में आपको क्या करना है कि वो थोड़ा रिड्यूस करना है उस चीज़ को. तो एक चीज़ वो आप कर सकते हो. What I was saying is that don't get too anxious or too excited about your mock scores, because I agree that mocks play a very, very important role in your CLAT prep. But what happens sometimes is that we put ourselves in a situation where we start preparing for the mocks rather than the main CLAT paper. And that is seriously not advisable, because we all know that CLAT 2020 paper was nothing like the sample papers, and the 2021 paper was nothing like the 2020 and the sample papers and mock papers. It was completely different. So don't prepare for mocks. Rather, you focus on your basics or time management. Keep your calm and composure while writing the exam. Your attitude plays a very important role as much as your basics, and
all its preparation does. Tarpan said and Harshita also that analyzing the mock is most important in your preparation and improving your marks. पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे इसमें इतने मार्क्स हैं और अगले में तुम्हारे ज्यादा मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि पूरे साल भर ऐसा होगा कि तुम्हारे एक में 80 मार्क्स आ गए और दूसरे में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम्हारे 60 या 50 आएंगे, क्योंकि मेरे को अभी याद है माय क्लैट स्कोर वाज 91.25, पर उससे पहले मैंने जो मॉक दिया था इट वाज ऑफ कोचिंग व्हिच प्रोवाइड्स यू एज इन योर प्रिपरेशन, तो मैंने उसका मॉक दिया और उसमें मेरे 60 थे, फिर वापिस मैंने उसी का मॉक दिया, वापिस मेरे 60 थे, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी थी, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन सेल्फ स्टडी, तो मैं बस टेलीग्राम पे जो उनसे मॉक्स मिलते थे वो दे देता था, तो उस कोचिंग के दिए तो 60 आए। और पर सी आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप प्रिपेयर कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपने मेहनत करी, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो दिन भर बैठ के, अपना वर्ड्स कर रहे हो, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, उस समय पे अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अगर आप डिस्कशन ग्रुप्स भी ज्वाइन करोगे टेलीग्राम पे, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा फेंकेंगे कि मेरे 150 में से 140 आ रहे हैं या 144 आ रहे हैं। मतलब इंग्लिश का सेक्शन याद है मेरे को, 30 मार्क्स का सेक्शन था, माय स्कोर वाज 10, मैं गया टेलीग्राम के ग्रुप पे कि भाई क्या हो रहा है, ये इतना मुश्किल सेक्शन है, क्या हो रहा है, फिर एक बच्चे का मैसेज आता कि भाई बहुत आसान था, मतलब मैंने तो हाफ टाइम में कर दिया और मेरे तो फुल है, और आपके साथ भी होगा ऐसा। सो उनके यूजर नेम्स होते हैं फुल स्टॉप XYZ, तो यहाँ से एक पूरा क्रक्स आ जाता है। ऑल्सो यहाँ पे कोई ऐसा था जिसने दूसरी बार क्लैट दिया, पिछली बार भी दिया था? हाँ, तो ऋषभ एक इस पे थोड़ी लाइट थ्रो करना कि जो लोग जब ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, सेकंड टाइम क्लैट के लिए अटेम्प्ट करते हैं, तो अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक तरीके से रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, तो वो जो पूरा पिछले बार के नेगेटिव स्कोर्स एंड सारे नेगेटिविटी उसको एलिमिनेट करके वापस गाड़ी को ट्रैक पे कैसे लाते हैं? सबसे पहले तो रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स छोड़ दो, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, सबसे खराब चीज प्रिपरेशन में यही होती है। दूसरा, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, मॉक का स्कोर इम्प्रूव करना है या आगे क्या पढ़ना है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक पुराना मॉक जो आपने दिया उसको वापस रिविजिट करो, उसको देखो। 12th के साथ इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप मॉक एनालाइज कर लिया एक बार, उसको आप वापस देखो, पर अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको ये सफिशिएंट टाइम मिलता है, आपने जैसे 1 महीने पहले कोई मॉक लिखा है आप उसको वापस देखो, आप अपनी जीके रिवाइज करो, रिवीजन करो, रेगुलरिटी रखो। ड्रॉपर्स कभी कभी क्या इतना एम्पल टाइम होता है तो छोड़ देता है कि यार अपन लास्ट के 4 महीने में कर लेंगे या लास्ट के 3 महीने में कर लेंगे, वो नहीं करना, रेगुलरिटी रखो। दिन में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना इतना एडवाइजेबल नहीं है, आप फिक्स नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करो, तो जैसे सेक्शनल टेस्ट दिया उसको एनालाइज किया, कोई सेक्शन में पर्टिकुलरली ज़्यादा टाइम लग रहा है मॉक में, उसका सेक्शनल टेस्ट दिया, टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करी, ये सब करो। और ओके, ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है बीच में, वी यूज्ड टू गेट बर्न आउट अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, सो किसी के पास इसके लिए कोई बढ़िया टिप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे दूर जाए? आई गेस अथर्व रेज हिज हैंड पहले। या हाय भैया, सो ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था कि कुछ भी हो, मॉक स्कोर्स गंदे हो या फिर कुछ भी, मतलब किसी बच्चे ने एक्सेल कर दिया उसमें, मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया, इसके बारे में बहुत कुछ होता था, फिर उसके वजह से प्रोडक्टिविटी पे भी हिट होता था, उसका काम नहीं हो पाता था, नींद आती थी, तो ये होता है। वीकली एक ब्रेक ले लो, संडे को ब्रेक ले लो, ठीक है, अभी तो 1 साल है, लाइक आई वुड, मतलब मैंने भी यही किया था, एक दिन पूरा ब्रेक लेता था मैं, लाइक मूवीज एंड ऑल ये सब तो नहीं देखा मैंने उसमें भी, लेकिन ब्रेक लेके अपना मी टाइम रखो, गाने सुनो, मतलब ऐसे रिजुनेट हो जाओ फिर नेक्स्ट वीक के लिए। एंड फिर एंड के टाइम में जो मेरा ब्रेक टाइम था उसमें मैं जीके ग्राइंड पे चला जाता था। मैंने मतलब एवरी वीक सैटरडे संडे का ब्रेक, पूरे 2 दिन जीके ग्राइंड, पूरे साल का जीके, पूरे 2 साल का जीके, सब स्टैटिक जीके, वो 2 दिन में सब मैं कर लेता था। Also, you can add to it के effectively ब्रेक कैसे लेंगे, because कुछ लोग ब्रेक के मोड में जाके वापस नहीं आ पाते। हाँ, एंड जीके इज अ थिंग वेयर यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, बस नोट्स निकालो, तुमको अच्छा लगेगा, एक टॉपिक पे पूरा नोट्स निकालो, मतलब 5-6 पेजेस के नोट्स बना लो, उसको 4 बार पढ़ लो और तुमको अच्छा लगेगा कि तुमने ऐसा ये खुद बनाया है, यू कैन कंपाइल दिस थिंग्स, तुमको अच्छा लगेगा कि ये सब तुम कर सकते हो, and you basically love GK after that, and GK is the most important one of those, so इसलिए
ब्रेक्स में ये किया तो आई थिंक द प्रेप इज सेट. Also, how many mocks shall we give during the initial days of our One preparation? mock One in per a week. week. One in a One week. mock per week. And after that, in the last days, you can increase it to two mocks per week. It's more than sufficient. Also, would you guys advise कि जैसे for example, after 15 days clat है, okay, so would you guys advise giving one mock per day? No, नहीं भैया, not at all. No way, not at बिल्कुल all. भी नहीं. एकदम भैया I One क्योंकि in think लास्ट today even ठीक 15 है. डेज में मैक्स टू मैक्स 5 मॉक्स. मैक्स टू Okay, मैक्स so 5 क्योंकि मॉक्स. वहाँ पे when we all used to study together, there were students who were giving एक mock per day, 2 mock per day. तो जैसा कि मैंने उस टाइम पे बोला था कि आपको ना एनालिसिस का टाइम बचता है ना किसी दूसरी चीज का टाइम बचता है, तो इट बेसिकली बिकम्स यूजलेस. आई गेस दैट इज द सेम रीजन कि आप लोगों ने भी मना किया है कि वन मॉक पर डे तो नहीं देना. बर्नआउट भी हो जाता है उसके बाद. जितने मॉक्स तो. और दूसरा मॉक्स moreover में अपना बेस्ट देना होता है, तो आप हर रोज लगातार 15 दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते. आपको थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है बीच में, क्योंकि मॉक इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ. आप क्वेश्चन पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, फिर वो जो उसका आउटकम आता है उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करते हो. गिविंग मॉक्स डेली इज दैट यू आर जस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एवरी डे. 150 क्वेश्चंस आप रीड करके आ रहे हो, फिर अगले दिन आप फिर अगले दूसरा सेट ऑफ 150 क्वेश्चंस रीड कर रहे हो. इंप्रूव नहीं हो पाओगे ना फिर आप. हाँ, एनालाइज का टाइम नहीं मिलेगा, फिर इंप्रूव भी नहीं हो पाएगा स्कोर, तो उसका कोई फायदा नहीं है. also one thing I'd say here, instead of giving 2 mocks, like I had seen people giving 2 mocks even in a day, and in fact they said कि यार तू भी at least दिन में एक तो दे दे, हर दिन you will be in practice. I'd say कि at the end of the day when your exam is near, what you would like to hear yourself saying yourself कि यार आज तो मैंने 4 sectional एक के दिए, like 4 sectionals of English, 4 of quant, ऐसे करके you are giving like 20 sectionals. Giving 20 sectionals is far better than giving 2 mocks. Like 2 mocks takes almost 10 or 12 hours, but that 20 sectionals won't take your 10 or 12 hours of the day, and you would still be having time for your me time, because end के day में I would say कि just rubbing yourself with the preparation is not what it wants. तो एक चीज बोला था ना आपने कि वो ब्रेक में चले गए तो फिर वापस नहीं आते, तो वो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस किया था मैंने अक्टूबर नवंबर के टाइम में. मतलब एक चीज ये है कि मतलब प्रेपरेशन के टाइम आप फोन इस्तेमाल करोगे चलेगा, लेकिन आप जो ऐसे ब्रेक डे असाइन करते हो खुद के लिए, वो टाइम पे फोन इस्तेमाल मत करो, क्योंकि फिर आपके पास पूरा दिन खाली रहता है. आप 12-13 घंटे फोन पे रहोगे, फिर वो हैबिट बहुत जल्दी लग जाती है और फिर वो पूरा हफ्ता वैसे ही निकल जाता है. तो ब्रेक के दिन तो आप फोन इस्तेमाल मत करो, कोई बुक पढ़ो, किधर जाओ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो. लेकिन ब्रेक के दिन पे आप सोशल मीडिया वो सब इस्तेमाल अगर कर लिए तो वो उसकी लत बहुत जल्दी लग जाएगी और फिर आपका प्रिपरेशन के टाइम में भी वो हैम्पर करना शुरू कर देगा. Also, would you guys recommend using social media throughout your prep? It's okay, their choice. It's okay भैया. It's up to you. I had used until like 2 months were left. उस टाइम प्रखर भैया ने legit सबके सोशल मीडिया बंद करवाए थे, तुम लोग को भी बंद करवाई जाएंगी. So no worries in that he'd manage it better. But उनकी अगले से it's बंद करवा like, दी गई. oh, okay, that's a different case then. But social media, it's like, I'd personally say like if you have control over yourself, तब you can use, like I had assigned my social media timings to 5 and 10 minutes, like 10 minutes WhatsApp and 5 minutes Instagram, and Telegram I had kept 15 minutes. जो कि मैंने लास्ट के कुछ दिनों तो मैंने टेलीग्राम खोले भी नहीं थे. I was like can't take negative vibes. Okay, Instagram minus reels, yeah, including reels. Minus reels. I Minus never reels. saw reels. Minus I reels. Reels तो मैं वैसे भी नहीं देखूं. वो Oh, endless vicious yeah, circle है. exactly. And not just Instagram reels, even YouTube shorts. Please, that's even addictive more than वो कुछ Instagram. अलग ही नया आ चुका है सबको. भैया वो story वगैरह कंसंट्रेशन जो होता है Cognitive स्पैन वो function कम कर decline देता हो है. जाती है उससे. ठीक है. Also, next question is कि I study for 1 week productively, then I have 2 complete unproductive days. How to overcome that? अगर एक हफ्ता ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जा रहे हो, दो दिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 दिन, अरे एक हफ्ता पूरा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को फोर्स किया हो. तो इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है.
वैसे भी क्लैट में ये हैबिट और टाइम ये सब बहुत ओवररेटेड है, इतना करने की जरूरत नहीं है। कम टाइम में और नॉर्मल प्रोडक्टिविटी से काम हो रहा है तो चलेगा। और अगर कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहे हो अपने आप को तो मे बी तुम कंटिन्यू कर पाओगे प्रोडक्टिविटी, जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2 दिन एकदम परेशान हो गए या ब्रेक लेना पड़ेगा। Okay, so the next question is how to bound yourself during the preparation of legal session, because that is काफी ज़्यादा infinite type. 3-4 रेगुलर टॉपिक्स आते हैं उसमें, एक थेफ्ट का आएगा ही आएगा, एक डाउरी का आएगा ही आएगा, कुछ 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स के आएंगे। तो एक ऐसा कोर बना लो आप, अगर वो कोर आपका एकदम अच्छे से हो गया, फिर धीरे धीरे वो मॉक्स के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे हमारे पेपर में क्लैट में वो कुछ तो नया कुछ तो आया था, नाम भूल गया मैं उसका। तो वैसे भैया सब मैरिज एक्ट से आया था और वो काफी उस समय न्यूज में था, तो उससे काफी हेल्प आया ना। जीके के हिसाब से कर लो लीगल, वो बेस्ट Yeah. तरीका। In fact, you don't even need to read passages as such in legal. Like legal can actually be done within 30 minutes. Like अभी you guys would think कि ये क्या impossible सी चीज बोल रही है, but that's the reality. Like when you start reading a newspaper daily या फिर when you're up to date with the legal happenings, you would be like, अच्छा ये पैसेज तो मैंने वहाँ पढ़ा था तो मुझे आइडिया है। And in fact one trick I had followed is like usually mocks में you would see this कि आपका source दिया होता है नीचे, like not saying exactly but yeah they are stupid to give the sources कि इस source से हमने लिया है। In fact कभी कभी online mocks में ऐसा होता था कि वो लोग source exact देते थे and you could even click it out and see. So in that case you don't even have to read the passage completely, बस देख ले अच्छा ये topics and you can directly jump to the questions. Okay, so this brings us to the end of the session. It was quite a nice time interacting with everyone. Also, one last thing which you guys all together on a consensus want to suggest to the batch of 2022 who will be appearing for CLAT next year. Join Success Board. Don't miss any of the GP sessions. सक्सेस बोर्ड प्रेशर कर लो, मत लो, चिल करो, प्रेशर मत लो, Don't चिल करो। miss GP sessions. GP sessions are the heart and soul of success board. So guys, please, I know there is a huge rush when it takes place. There are people fighting over that one seat. It's like your luck waste. So please don't miss GP session at least. जीपी सेशन से आधे घंटे पहले रेडी रहना। सीट नहीं मिल पाती। भैया पूरी प्रिपरेशन एक तरफ और जीपी स्पेशल एक तरफ। So I guess that was your favorite part from the entire 2 months at Success Board, 2-3 months at Success Board. Yeah, मॉक and the लिख रहे हो best. तो जीपी स्पेशल जाओ, मॉक मत लिखो, जीपी स्पेशल जाओ। हाँ, कितने लोगों ने तो छोड़ के सेशन में अटेंड करना। Exactly, I was one among them. चलो, okay. Thank you so much, guys. I had a great time with you.